Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of SST, that is also going to categorize in history, chapter number 10, colonial rule and urban change. And in this chapter we are going to study about how the colonial rule entered the India, and after that how they reconstruct the town. What happened with the old towns and how they reconstruct the new towns, what characteristics were there for these towns. So let's start the chapter with the process of urbanization and deurbanization. So first of all, you understand what is urbanization. See beta, in the previous chapter we have understand how the colonial government entered in the India. कैसे हम कॉलोनीज़ बने, कैसे जो ब्रिटिशर्स ने हैं धीरे धीरे बंगाल से स्टार्ट करके कॉन्क्वायर डिफरेंट प्रोविंसेस को अपने कंट्रोल में कर लिया. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बिजनेस के पर्पस से आई थी, धीरे धीरे वो हम पे गवर्न करने लग गई. अब जब वो गवर्न करने लग गए बेटा, नाउ दिस इज़ द टारगेट दैट दे नीड टू सेटल हेयर प्रॉपरली, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू सेटल हेयर दे नीड ऑल द फैसिलिटीज़. So that's why they started to do the urbanization process and deurbanization of the old towns. So urbanization is the process when the town comes into being and prominence. Means when we are going to start to giving the facilities to the particular area. Previously there were the villages only or the small towns only. But when the basic amenities are going to be provided, for example, road facilities, transportation, communication, railway line, then market area, then construction of the other buildings or the administrative centers. So when we are going to provide such types of the facilities, now this facilities process is known as urbanization. Same as in the British time also, when towns started to came into exist, that known as the urbanization. There are so many towns came into the existence during the British rule. For example, Calcutta, Bombay, Chennai, etc. See beta, Chennai is the modern name. At that time there was a Madras. चेन्नई अब कहते हैं, पहले मेड्रास कहते हैं. सो आफ्टर अर्बनाइजेशन नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीअर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन में तो हमने छोटे छोटे शहर बनाने शुरू कर दिए. डीअर्बनाइजेशन में क्या होता है बेटा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं, व्हेन दे स्टार्टेड टू लॉस देयर इम्पोर्टेंस, then that process is known as deurbanization. आपने बहुत पहले एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ी थी तो इतने अच्छे अच्छे टाउन्स सुने थे, टाउन प्लानिंग भी सुनी थी अबाउट द हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एक्सेट्रा. दे वर द प्रोमिनेंट टाउन्स ऑफ देयर टाइम. देन आफ्टर दैट अदर्स ऑल्सो टाउन्स एग्जिस्टेड लाइक फतेहपुर सिकरी था आपका, जो अकबर ने चूज़ किया था एज ए कैपिटल ऑल्सो इन द मेडिवल पीरियड. तो उस समय उनकी इम्पॉर्टेंस थी. बट जैसे ब्रिटिशर्स का रूल आने लग गया तो उन्होंने इन एरियाज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं दिया, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी. सो फतेहपुर सिकरी जो कि कैपिटल टाउन था मुग़ल एम्पायर के टाइम पे, अकबर के टाइम पे, वो धीरे धीरे अपनी इम्पोर्टेंस लॉस्ट करता गया. सेम ऐसे बहुत सारे अदर टाउन्स थे, दोज हु लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस. And there were many causes for the deurbanization process. The most important causes of these two processes, especially when we are talking about the urbanization and when we are talking about the deurbanization. So इन दोनों के पीछे दो कारण होते हैं, political and commercial. So please underline, ये आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है बेटा, कि the process of urbanization and deurbanization happened on which basis? 2 bases, political and commercial. Other causes can also be there, maybe the topographical location होती है, उस वजह से भी changes आते हैं. Then natural calamities आ गई, flood आ गया, उसकी वजह से भी changes आते हैं. जैसे आपने पढ़ा था ना previous chapters में, class 6 में, कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये जब था जो, ये सारा का सारा फ्लड में बह गया. ऐसा भी एक परसेप्शन है कि ये कैसे ख़त्म हो गई सिविलाइजेशन. सो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से भी डीअर्बनाइजेशन हो सकता है. रिलीजियस इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है किसी प्लेस की, तो उस वजह से भी अर्बनाइजेशन हो सकता है. टूरिज़्म अगर कहीं बढ़ जाए तो वहाँ पे भी अर्बनाइजेशन हो सकता है.
So basically political, commercial and many other causes related to the urbanization and deurbanization, and this process continue in the modern period also. You can see the photographs of Mohenjo-daro. अब ये क्या है, ये ancient town था. Then Fatehpur Sikri and now the Fort St. George at the Madras. So ये तीन अलग अलग पिक्चर, तीन अलग अलग टाइम्स की आपको दी गई हैं urbanization और deurbanization से related. Some of the important towns that gain and lost glory can be cited as the example. पढ़ना जरूरी है क्योंकि उनकी अपनी इंपॉर्टेंस रही है, तो हम उन्हें जानेंगे. सबसे पहले बात करते हैं हम सूरत की. सूरत came to be the prominence when the East India Company established their factory in 1612. उस समय बेटा सूरत में जब ये फैक्ट्री लगी ना, तो सूरत की अपने आप में इम्पॉर्टेंस ही बढ़ गई थी. सूरत कहाँ है? गुजरात में. However, after the Bombay fell into this process ना, then Surat lost its importance. तो with the passage of time ये चलता रहता है urbanization और deurbanization. So बॉम्बे के आते ही सूरत की importance कम होने लग गई. Presently, it has once again become the bustling town, especially due to the trade in diamond and cotton. आज की डेट में सूरत डायमंड और कॉटन ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. सो रीगेन किया इसने अपना अर्बनाइजेशन प्रोसेस अगेन. अब बात करते हैं मसूलीपट्टनम की. मसूलीपट्टनम वॉज सेटअप विद द फैक्ट्री इन 1611 ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. यहाँ पे भी फैक्ट्री लगाई गई थी, बट व्हेन दिस फैक्ट्री वॉज शिफ्टेड टू मद्रास, दैट इज प्रेजेंट डे चेन्नई, सो दिस टाउन लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस. आफ्टर दैट देयर इज अ मुर्शिदाबाद ऑल्सो. Murshidabad was the capital of Bengal during the reign of Sirajud-Dowla. जब ये राजा थे तो उनकी ये कैपिटल थी मुर्शिदाबाद, बट इसकी भी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होती गई जब बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में. एंड आफ्टर दैट कैलकाटा बिकेम द न्यू सेंटर फॉर द ब्रिटिश एक्टिविटीज. सो मुर्शिदाबाद की इस तरीके से इम्पोर्टेंस खत्म हुई. Now we are going to discuss about the emergence of new towns during the British period. अब ब्रिटिश ने कौन कौन से न्यू टाउन एस्टैब्लिश किए उसके बारे में पढ़ते हैं. colonial rule, you know beta, influenced the whole life of Indian in the different ways. It influenced the rise and fall of many towns. During this period, many old towns continued to flourish, but new towns also emerged. There were a few ones that receded into the oblivion. The British undertook the variety of activities, so they needed to find the new towns. अब क्या करेंगे? वो इस्टेब्लिश करेंगे. जब उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है तो उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ भी चाहिए, इसलिए दे स्टार्टेड टू फाइंड अप द न्यू टाउन्स. नाउ the following types of the towns came into the existence during the colonial period. जो सबसे पहले उन्होंने टाउन्स बनाया, that type is presidency towns. Presidency towns serve the purpose of trade, then administration and then military. ये सारे ही पर्पस को जो है सर्व करते थे ये टाउन्स. They were like capital towns. जैसे आज हमारी कैपिटल होती है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह, सेम एज ये प्रेसिडेंसी टाउन से. Calcutta, Madras, Bombay, they served as the presidency towns. After that, military towns also they have established because they want to strengthen their army, their position at the defense level also. That's why they established several garrison. These emerged as the large cantonment area such as Barakpur, then आपका काउपुर, मेरठ, वेल्लोर, भुज एक्सेट्रा. ये इन्होंने ना बेस बना दिया था अपना मिलिट्री कैंपेन के लिए. सो दीज वर द मिलिट्री टाउन. आफ्टर दैट दे हैड ऑल्सो डेवलप्ड द इंडस्ट्रियल टाउन्स. इंडस्ट्रियल टाउन ऑल्सो दे नीड टू फ्लोरिश देयर इंडस्ट्री, टू फ्लोरिश देयर ट्रेड. और वहाँ पे अगर आप देखते हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है जमशेदपुर, अहमदाबाद एक्सेट्रा. सो ये भी इन्होंने डेवलप किए फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज़. After that, hill stations, such types of towns also developed during the British rule because Britishers were very uncomfortable with the hot and humid climate of India. बहुत extreme climate थी. That's why they started to search such a town where they can relax. So they established the hill station
and number of hill station today also we are visiting during the summer season. They also visited during the summer season like Darjeeling, Shimla, Mussoorie, Dehradun, Ooty, Panchmari, Shillong etc. So ये हिल स्टेशन का देखो कंसेप्ट जो है कितना अच्छा वो उस समय अपने लिए लेकर आए थे. टुडे द पीपल ऑफ द हॉट एरिया दे ऑल्सो एंजॉयड द हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर सीजन. आफ्टर दैट पिलग्रिमेज टाउन्स, एज द नेम सजेस्ट, तीर्थ यात्रा बिल्कुल, जिनका एक इम्पॉर्टेंस होती है, हॉली प्लेस होते हैं, सेक्रेड पवित्र स्थान माने जाते हैं, ऐसे टाउन्स को भी उन्होंने डेवलप्ड किया. With the introduction of railway, many of them become the accessible, so they become very prominent. हालांकि pilgrimage town पहले भी थे भारत में, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ आई ना उस वजह से लोग यहाँ तक पहुँच पाए. हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, हम्पी, महाबलीपुरम एक्सेट्रा, दे सर्व्ड एज अ pilgrimage towns. So अगर आप देखते हो बेटा तो we can see the different types of town flourished in India during the British rule, and these towns they serve the different purpose also. एक एग्जाम्पल और आपको दिया हुआ है भोपाल का. भोपाल सर्व्स एज द कैपिटल टाउन, ट्रेड टाउन, टूरिस्ट टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन. तो कहने का मतलब ये है कई बार एक ही टाउन के अंदर आपको मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ दिख जाती थी, तो एक ही टाइम पे वो टाउन ये सारी एक्टिविटीज़ को फुलफिल करता था. देयर आर न्यूमरस अदर सच टाउन्स who fulfill the variety of activity at a particular place. Now moving to the colonial policies and institution. British had arrived in India for which purpose? Trade purpose. But gradually they started to develop their imperialistic power. साम्राज्यवाद. They wanted to conquer the area. और जब उन्होंने हमें conquer किया, ग्रेजुअली हमें गुलाम बनाना शुरू किया, हमें अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया. सो दैट इज द इम्पीरियलिज्म. और बेटा यही कारण था दैट ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू ऑक्यूपाई मैनी टेरिटरीज ऑफ द इंडिया, क्योंकि उन्हें अपना ये एम्बिशन तो फुलफिल करना था. नाउ अब जब उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया, वहाँ रह रहे हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए. कैसे गवर्न करेंगे इस न्यू एरिया को? उनके हिसाब से चलना चाहिए. जो पहले के रूल्स हैं क्या वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सो द सिस्टम वॉज हैपन पोजिंग सेवरल प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्ट्रिंग दैम. पहले तो इंडियन कल्चर को समझो, इंडियन रूल्स को समझो, रेगुलेशंस को समझो क्या चल रहा है, और फिर अपने न्यू रूल्स रेगुलेशंस हम लेकर आ रहे हैं. सो ब्रिटिशर्स को चाहिए था एक फाइन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी एग्जिस्टिंग आपके रूल्स हैं और ऑब्सोलेट सिस्टम हैं उसे वो ट्रांजिट करेंगे इन द न्यू टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और वो एडमिनिस्ट्रेशन किस लाइन पे बेस्ड था? यूरोपियन लाइन पे बेस्ड था. यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ वो कर गए क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन एंड इंडियन थॉट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन लाइन्स. But in this endeavor, they established the municipalities, then public work department, planning departments, railways, police organization, and these organizations, with certain changes, still continued to play a vital role in our country. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई, पुलिस डिपार्टमेंट बनाया, देन उन्होंने CPW बनाया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया, प्लानिंग कमीशन बनाया, म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई, आज भी ये डिपार्टमेंट हैं. सो समवेयर दे हेल्प्ड अस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करते हैं ब्रिटिश टाइम पे. सो ब्रिटिश फाउंड द नेटिव सिस्टम ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैपहैज़र्ड, एज लिटल अटेंशन वॉज पेड टू द फ्यूचर नीड्स. उन्हें पसंद नहीं आया कि ये लोकल लेवल पे कैसे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर रहे हैं. कोई लीगल प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी गांव का मुखिया बन जाता है, कुछ. सो टू रेगुलेट इट दे डिसाइड व्हाट टू रिफॉर्म द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन. ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था. जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन था उसको रिफॉर्म करने के लिए, रिवाइव करने के लिए उन्होंने अपना नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इन विच कॉमन पीपल डिड नॉट हैव एनी से. आप नहीं बोल सकते. लॉर्ड रिपन ही फेवर्ड द लिबरलाइजेशन. Why? To liberalize the administration and give representation to the native people. ये लॉर्ड रिपन का मानना था
कि भाई लोगों के पास आप अधिकार दो, वो रिप्रेजेंट करें अपनी लोकल प्रॉब्लम को और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाएं। और यही कारण था इन 1882 ही वर्कड ऑन दिस सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर ही फिर म्यूनिसिपैलिटी जो है वो फॉर्म्ड हुई। इट वॉज टू बी अंडर द चार्ज ऑफ एन ऑफिसर म्यूनिसिपल कमिश्नर। अब ये जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता था ना बेटा, ये हमेशा एक ब्रिटिश ऑफिसर होता था, इंडियन को नहीं बनाया जाता था। सो लॉर्ड रिपन का कंसेप्ट तो बहुत अच्छा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनानी चाहिए, जैसे आज भी हमारी हैं म्यूनिसिपैलिटीज़, और पहले गांव में भी विलेज पंचायत होती है ना। तो वो सिस्टम तो उन्होंने रेगुलेट किया, सही इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि लोकल लेवल की प्रॉब्लम लोकल पीपल ही सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या उन्होंने लोकल लेवल पे लोकल पीपल को कोई पोजीशन दी? ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उन्होंने जो हेड बनाया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी का, वो म्यूनिसिपल कमिश्नर था, और कमिश्नर हमेशा एक ब्रिटिश होता था। देन चेयरमैन, जिसे मेयर कहा जाता है, फ्रॉम अमंग्स द नेटिव सिटीजन। यहाँ एक काम कर दिया कि जो एक पोस्ट थी मेयर की, वो नेटिव सिटीजन जो इंडियन थे उनको दी गई। He decided that the government would have the ultimate control and supervision of all the activities. यानी कि आप देखो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो रियल एग्जीक्यूटर होता था, एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास थी, और मेयर जो होता था वो सिर्फ सेरेमोनियल पावर के लिए होता था। सो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास गया? म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास। एंड देन it would also rest with the elected representative of the people. The chairman or the mayor was an elected and not appointed officer. Thus, the credit for the introduction of local self-government in municipality goes to Lord Ripon. So, we can say thanks to him. बेशक उन्होंने उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया था, बट आज ये लोकल लेवल पे अच्छे से काम कर रहा है। Municipality was responsible for the civic matters and the urban एडमिनिस्ट्रेशन। अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बेटा हमें शहरों में क्या चाहिए होता है? प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, देन इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ है, हाइजीन है, स्ट्रीट लाइट है, कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स है, लाइब्रेरी, पार्क, डिस्पेंसरी एक्सेट्रा। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जिसे हम सिविक एमिनिटीज़ कहते हैं। सो म्यूनिसिपैलिटी was and still is responsible for all these things. The first municipalities was set up in the presidency town of कैलकाटा, ये आपको याद रखना है। देन मेड्रास, आफ्टर दैट बॉम्बे। यानी कि हमारे ये जो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, कैलकाटा, मेड्रास एंड बॉम्बे, इन तीनों में पहले म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई गई। देन आफ्टर दैट सूरत, कोयम्बतूर, लखनऊ, जम्मू, दिल्ली, इनमें भी म्यूनिसिपैलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। 1905 की बात करें तो मोर पावर्स वर गिवन टू द इलेक्टेड मेंबर्स। जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आते थे अपने अपने वार्ड से, उन्हें कहा जाता था काउंसलर्स। आज भी हम कहते हैं ना वार्ड काउंसलर्स। सो ये इलेक्टेड मेंबर हैं। एंड दिस रिलीव्ड द गवर्नमेंट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टाउन, क्योंकि ये वार्ड काउंसलर्स को अब दे दिए गए डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कहीं ना कहीं मेयर का और म्यूनिसिपल कमिश्नर की थोड़ी, कहते हैं ना, जिम्मेदारी कम हो गई। After independence, a basic feature of municipality have been retained as they continue to provide civic amenities. So आज भी हम ऑलमोस्ट यही फीचर अपनाते हैं म्यूनिसिपैलिटी में। बस यहाँ पे ये नहीं होता कि कोई भी अपॉइंटेड बंदा ब्रिटिश ऑफिसर होगा, नहीं, यहाँ पे इलेक्टेड होंगे या फिर अपॉइंट जो होगा वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होंगे। सो आज भी यही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही हैं म्यूनिसिपैलिटीज़। एट प्रेजेंट देयर आर 2 लेयर्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। ये जो आप देख रहे हो हायरार्की में, ये विलेज में चलता है, जिसे ओवरऑल हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। और अगर आप शहरों की बात करते हो सो म्यूनिसिपैलिटी है आपकी। द नेम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज वेरीज एज पर द साइज एंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी जो है बेटा वो डिफर करती है, कैसी आपकी पॉपुलेशन है उस जगह की और कितना बड़ा एरिया है। A nagar panchayat is meant for the small town, very small town. Very small town means the area which are going to transit from rural area to the urban area. मतलब एक ऐसी जगह जो गांव से शहर की तरफ अभी कन्वर्ट हो रही है।
इसलिए हम कह रहे हैं वेरी स्मॉल टाउन, सो वहाँ नगर पंचायत होता है. देन नगर पालिका इज मेंट फॉर द मीडियम टाउन एंड नगर निगम that is for the metropolitan cities. If you are living in a Delhi, Madras को हम क्या कहते हैं, चेन्नई, ये हमेशा ध्यान रखना. सो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बॉम्बे का प्रेजेंट नेम मुंबई है. इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में यू विल फाइंड द नगर निगम, जिसे आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं. द सोर्स ऑफ इनकम आर लोकल टैक्सेस लाइक हाउस टैक्स है, सीवर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, एक्सेट्रा. एंड द गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से फंडिंग करती है. सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपना काम कर पाती है. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट की जो ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. द गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल फैसिलिटीज. PWD ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज. रोड बनानी है, PWD, रोड्स के भी डिफरेंट टाइप होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ PWD वर्क करती है. इरिगेशन फैसिलिटीज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्कूल, पार्क, लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट एंड अदर यूटिलिटी बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिसिटी वर्क, all these come under the PWD. So PWD construct these facilities and hands them over to the concerned department for the utilization and operation. So ऐसा नहीं है कि PWD आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा या पानी प्रोवाइड करेगा, नहीं बेटा, ये वो बिल्डिंग्स बनाएगा, वो चीज़ें बनाएगा जिसके थ्रू ये डिपार्टमेंट जो है अपने फंक्शन को ऑपरेट कर सकें. सो PWD ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग्स. देन रेलवे की बात करते हैं, ये भी इन्होंने अच्छा कंस्ट्रक्ट किया था. दो दे हैव कंस्ट्रक्टेड द रेलवे एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर देयर ओन पर्पस. उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिशर्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था रेलवे को. द रेलवे नेटवर्क स्टार्टेड टू बी क्रिएटेड बाय ब्रिटिश. और आपको पता है फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो कहाँ बिछाई गई थी, बॉम्बे टू थाने इन 1853. अब ये थाने जो है ना बेटा, ये पुलिस स्टेशन नहीं है कि आप थाना चले जाओ. थाने इज द प्लेस इन द महाराष्ट्र. सो बॉम्बे और थाने के बीच में 1853 में पहली रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा. देन द ब्रिटिश स्टार्टेड लेइंग डाउन द मेनी रेलवे लाइन्स so that they can help in their trade and effective control over the administration also. As it become very important, government department with a huge budget, the railway budget started to be presented separately. क्योंकि भाई रेलवे कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, पूरी रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, इतने इंजन्स बनाने हैं, इतनी बोगी बनानी है, तो बहुत पैसा लगता है. तो अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने, इसका डिपार्टमेंट अलग किया, इसका बजट भी अलग कर दिया, कितना पैसा दिया जाएगा. So this practice has been discontinued in 2016 when the railway budget was merged with the national budget. ये अब जाके हमने अलग जो था ना रेलवे बजट, इसको अब नेशनल बजट में मर्ज किया 2016 में. At present the route length of the railway network is 67,368 किलोमीटर. It means अचीवमेंट तो बहुत अच्छी है रेलवे नेटवर्किंग में हमारी. Now the next department created by the Britishers was the police. जब colonial rule नहीं था बेटा, तो soldiers were used to both act as a army men and as well as the law enforcers. But जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सो उन्होंने ये पुलिस वाला सिस्टम कंटिन्यू किया आफ्टर 1857. 1857 तक तो हमारा पहले वाला सिस्टम ही चल रहा था, बट जब वो इतनी बड़ी रिबेल हो गई 1857 की क्रांति, तो उन्होंने पुलिस सिस्टम कंटिन्यू कर दिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नीड फॉर द पुलिस सिस्टम टू स्ट्रेंथन देयर रूल इन इंडिया. सो 1861 में एक प्रॉपर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई और इसके लिए एक कानून पास हुआ था, पुलिस एक्ट इन 1861. यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट आप देखते हो 1861 से इस्टेब्लिश हुआ है. देयर वर मेनी शॉर्टकमिंग्स इन दिस डिपार्टमेंट. Then it was reconstructed or restructured in 1902, क्योंकि 1861 वाला प्लान तो फ्लॉप हो रहा था, नहीं प्रॉपर वर्क कर रहा था. सो 1902 में दोबारा इसे बनाया गया. द प्रोविंशियल पुलिस डिपार्टमेंट वॉज पुट अंडर द चार्ज ऑफ इंस्पेक्टर जनरल. अब क्या हुआ, अलग अलग पोस्ट बनानी शुरू की गई. तो सबसे पहले आई हमारी IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, who function with the help of several deputy inspector general of police, DIGPs. The in charge of the district level was to the
डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, सीरियल में भी और टीवी में भी। डीएसपी सबसे ज़्यादा यही आते हैं सामने। DSP assisted by the number of inspectors, sub-inspector and constables who worked in the different thanas and kotwalis. The security of the village was under the supervision of चौकीदार। तो विलेज के लिए चौकीदार जो हैं अपॉइंट किए जाते थे। In the presidency towns of Calcutta, Bombay and Madras, the police department was under the charge of Commissioner of Police। ये भी आपने सुना होगा। Commissioner of Police assisted by whom? ये आपको याद रखना है बेटा। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है ना, वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो असिस्ट करते हैं। तो देखो ये पोस्ट आप देखो शॉर्ट फॉर्म में आपको याद होती रहेगी, CP, देन ACP, देन जो ACP है ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड नॉट टू द IGP। द पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड द CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल क्राइम्स जो होते हैं ना, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया। फिर बनाया सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसे हम आजकल CBI कहते हैं। ये बनाया गया टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ द CID। So these departments were used by the British government to suppress any revolt or any revolutionary activities. As the police organization enjoyed absolute powers, it became very corrupt। क्योंकि इनको तो सारी पावर दे दी गई, आप इन्वेस्टिगेट करो, आप ये क्राइम देखो, आप वो देखो, तो ये धीरे धीरे करप्ट होते गए। इट हैरेस द नेटिव पीपल, जो लोकल लोग थे ना, उनको इन्होंने जो है सप्रेस्ड करना शुरू कर दिया। सो इट नेवर बिकेम द पॉपुलर विद द कॉमन पीपल। आज भी हमारे दिमाग में पुलिस की जो इमेज है ना, शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई है, कुछ जो पुलिसमैन ने पहले करप्शन की उस वजह से। सो द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड इट्स इमेज इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो। सो देयर इज द नीड टू रिवैम्प इट एज पर द प्रिवेलिंग नीड्स ऑफ द कंट्री। ज़रूरत है एक बार इसे और रिफॉर्म करने की इस डिपार्टमेंट को। अब आपको एक केस स्टडी दी हुई है बेटा दिल्ली की, उसको हम ले लेते हैं। गैंगटिक प्लेन, दिल्ली कहते हैं बहुत ही फर्टाइल लैंड है, गैंगटिक प्लेन के किनारे है। इट स्टूड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द यमुना, बट नाउ इट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर। सो इट इज बाउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा ऑल्सो। इट इज द गेटवे टू द सेंट्रल इंडिया। सो ये आपको दी हुई है दिल्ली की लोकेशन। अब अगर हम इसमें देखते हैं, सो दिल्ली एक एंशियंट टाउन रहा है और ये माना जाता है कि इट वॉज बिल्ट बाय द पांडवास एंड वॉज देन कॉल्ड इंद्रप्रस्थ। उस समय जब पांडवों ने इसे अपनी राजधानी बनाया था तो इसे इंद्रप्रस्थ कहते थे। द मुगल रूलर शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, और फिर दिल्ली जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। इट वॉज देन कॉल्ड द शाहजहानाबाद। जब शाहजहां इसे बना के लाए ना अपनी कैपिटल, शिफ्ट की आगरा से, तो इसे शाहजहानाबाद कहा गया। इन 1911 द ब्रिटिश मेड न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड न्यू दिल्ली वॉज प्लान्ड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस। ये नाम आपको याद रखना है कि दिल्ली की प्लानिंग इन्होंने ही की थी, एडविन लुटियंस ने। इट कंटिन्यूज टू बी द नेशनल कैपिटल टुडे ऑल्सो। दिल्ली इज हैविंग द मेनी मार्क ऑफ हिस्ट्री। चाहे आप मॉन्यूमेंट्स देख लें, बहुत सारे आपको हिस्ट्री याद आ जाएगी। पुराना किला एंशियंट टाइम को दर्शाता है। देयर आर नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स which belong to the medieval period, Red Fort, Qutub Minar, Jama Masjid, then colonial period too gave their importance. So आप देखोगे, so colonial टाइम के आपको नज़र आएंगे, इंडिया गेट आपको नज़र आएगा colonial टाइम का, then राष्ट्रपति भवन आपको नज़र आएगा, and new monuments also continue to build after the independence such as Lotus Temple and many others. So with its multifarious activities, Delhi can be called a capital town, garrison town, trade town, industrial town, tourist town, historical town, all woven into one. अब बात करते हैं दिल्ली की म्यूनसिपैलिटी की। एट प्रेजेंट देयर आर 3 म्यूनसिपैलिटी फंक्शनिंग इन दिल्ली,
Municipal Corporation of Delhi MCD for National Capital Territory of Delhi NCT, New Delhi Municipal Council NDMC for specific need of Delhi, and Delhi Cantonment Board for the cantonment area. सो 3 टाइप्स की आपको म्यूनसिपैलिटियाँ फंक्शन करते हुए नज़र आएंगी. पब्लिक वर्क की बात करते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ बनाए गए हैं, जैसे CPWD बनाया गया है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड, पार्क्स, लाइब्रेरी, ब्रिजेस एक्सेट्रा. देन दिल्ली जल बोर्ड बनाया गया है फॉर वाटर सप्लाई एंड डिस्पोजेबल एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. देन दिल्ली विद्युत बोर्ड भी बनाया गया है, IDVB फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो दिल्ली इज़ वेल कनेक्टेड विद द मेजर इंडियन टाउन्स by rail, even road and airways also. So with its municipal limits, there is a large network of roads with a large number of flyover, highways, etc. Now the metro rail are running and most important means of passenger to transport from one place to another. तो मेट्रो ने तो अपने आप में एक क्रांति कर दिया है. मेट्रो रेल इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशन. अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं बेटा. तो दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी बट बीइंग अ कैपिटल टाउन एंड इन द व्यू ऑफ नीड ऑफ VIP सिक्योरिटी, इस एडमिनिस्ट्रेशन इज शेयर्ड एट 2 levels. 1, the central government supervises the security administration through the लेफ्टिनेंट गवर्नर. ये आपको याद रखना है. लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और वो सुपरवाइज करते हैं ये सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को. और दूसरा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर इसको लुक आफ्टर करते हैं. अब बात करते हैं हम पुलिस की. Delhi has varied security needs, so a very large police organization has been set up here. आपको पता है दिल्ली में VIP रहते हैं बहुत ज़्यादा, एम्बेसी एरिया है, पार्लियामेंट है, तो सिक्योरिटी तो बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए. दैट्स वाई द सिक्योरिटी इज अंडर द चार्ज ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस CP, एंड द कमिश्नर ऑफ पुलिस इज गोइंग टू बी असिस्ट बाय द 9 डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस. 9, वो भी अपने अपने एरिया में, अपने रिस्पेक्टिव पुलिस डिस्ट्रिक्ट में ये 9 DCP जो हैं ये असिस्ट करते हैं CP को. देन DCP इज ऑल्सो गोइंग टू बी असिस्ट बाय द SHOs, द स्टेशन हाउस ऑफिसर्स. द दिल्ली पुलिस इज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक, सिक्योरिटी ऑफ VIPs, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स एंड एक्सेट्रा. बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस के पास है. एज दिल्ली इज़ द हब ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एक्टिविटीज़, द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डील विद अ लार्ज नंबर ऑफ चैलेंजेस. सो दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा इन्हें हर तरीके की सिक्योरिटी पे वर्क करना पड़ता है. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लेट्स डू द क्विक रिविजन. What we have studied, the process of urbanization and deurbanization occur as per the changing situation. Then we have discussed the large number of towns became important during the British rule, like आपके presidency towns थे, military towns थे, hill station, pilgrimage town, etc. Then colonial policies led to establishment of several government departments which help in the civil administration. आपका municipality, public work department, railway, police organization, etc. Then after that we have discussed the British allowed participation of people in the municipalities which still continue. Then police department was used as tools of harassing the people. At that time many police person engaged in the corruption activity. So image कहीं ना कहीं डाउन हो गई थी पुलिस की. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.